Hello everyone, welcome back to ASR NCRT Decoder. Sorry for late update, but here I am again with the chapter is respiration in a plant, and this is the book of ICSE board class 9th. So I'm here with the chapters. I'll explain line by line everything, the clear topics and with a clear explanation whatever you need for. So be with me and have a good day. Okay, let's continue. So here we are going to continue what is the respiration. Okay, the earlier the introduction is given here, like all the organism they need require energy, and they also do type of respiration, that is aerobic and anaerobic. So here we are going to learn what the respiration is. Okay, and what the aerobic and anaerobic respiration we will learn it later on. So here we are going to see all the living cell in a plant as well as those in an animal require energy for various activity of the body. For example, building up protein and amino acids, making starch from glucose, absorbing mineral from the soil, or laying down cell wall by plant cell are all such activities that require energy. So what is it? Here the thing is given कि each and every cell, it means either the plant or the animal or any type of a bacteria or any organism, the living organism, they need energy, okay, to continue their work, to fulfill all the requirements of the body, to metabolism, everything. So for what we need energy? So here it's given the some examples like starch को तोड़ के ग्लूकोज बनाना, मिनरल्स को सॉइल में एब्जॉर्ब करना सॉइल से, या तो फिर बोला जा रहा है कि आप सेल वॉल बनाना, प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनता है, या हर तरह की एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए. दीज एनर्जी इज मेड अवेलेबल बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. अब ये एनर्जी आएगा कहाँ से? ग्लूकोज को तोड़ने के बाद. अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कौन है सिंपल कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? सो दैट इज गिवन C6H12O6. that is a glucose and it is a simple carbohydrate. The chemical breakdown of glucose occur by utilizing oxygen and it represented by the following overall reaction. So utilizing oxygen, this is very important thing. Later on you come to know the respiration occurs without utilizing of oxygen also, but here it's given by oxygen. So what is it? Have a look here. This is the glucose with the oxygen, and in the presence of enzyme it will broke down into CO2, H2O and energy. Now have a look here. When we do aerobic respiration, okay, it means with the utilization of oxygen, तो ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनता है CO2 जिसको हम सांस छोड़ते समय बॉडी से बाहर कर देते हैं, वाटर जिसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, और एनर्जी जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो हम यूज़ किए, नहीं ज़रूरत है तो स्टोर किए. ठीक है, चलिए. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन इन दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में 3 स्टेप्स चल रहे हैं. हमें तो यहाँ बस साफ साफ दिख रहा है कि ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन भी आया. ग्लूकोज कहाँ से आया? तो हम खाना खाए तो वो हमारे मुंह में डाइजेस्ट होता है सलाइवा के थ्रू. ओएसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, फिर स्टमक में डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विली में जो प्रेजेंट्स हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, और लंग्स में प्रेजेंट रहता है ऑक्सीजन जो हम सांस लेके लंग्स में जमा रखे होते हैं. तो ऑक्सीजन और ये खाना दोनों आ रहा होता है सेल के पास. मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में इंटर करेंगे तो ये पाइरूवेट में टूटेंगे, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनको तोड़ के CO2 वाटर और एनर्जी बनाएगा. तो कहने का मतलब है ये सारा प्रोसेस 2 तरीके से, अलग अलग तरीके से होता है. फर्स्ट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. पहले तो हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे. भाई क्यों तोड़ेंगे? तो इनके पास 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन भी तो है, इनको हमको तोड़ना तो पड़ेगा. तो ग्लूकोज को तोड़ेंगे टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डज नॉट अकर इन अ सिंपल स्टेप बट इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स. ये एक स्टेप में तो होने से रहा है ना, एक ही बार में ग्लूकोज टूटता नहीं है, वो 2 स्टेप्स में होता है. दीज स्टेप्स अकर इन 2 मेजर फेजेस. फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस. कैसे याद रखेंगे? ग्लाइको इज ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स होता है टूटना, ब्रेक डाउन. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ब्रेक डाउन, ग्लाइकोलाइसिस. नेक्स्ट इज इट्स गिवन हियर कि ग्लूकोज जो है वो टूट के क्या हो रहा है? पाइरूवेट. ग्लूकोज जो होता है वो कहलाता है 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और जबकि आपका पाइरूवेट जो होता है उसको बोलते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल, C3 और C3.
आ रही है बात समझ में। तो ये ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में टूटता है। अकरिंग इन अ साइटोप्लाज्म, ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट इज क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में पायरूवेट टूटता है CO2 H2O और ATP में। अब देखिए इस चीज़ को हम बहुत ईजिली यहाँ हम समझाते हैं आपको। ये आपका सेल है और ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, खून की नली है, ठीक है। खून के नली में यहाँ से आ रहा है आपका ग्लूकोज, हम यहाँ C6 लिख दें तो समझ आ जाना चाहिए ये ग्लूकोज है, प्लस आ रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन से अंदर इंटर करेगा, मतलब ये साइटोप्लाज्म कंटेंट में इंटर करेगा, तो ये 3 कार्बन में टूट जाएगा। ये कितना में टूटेगा, C3 एंड C3, मतलब ये बन गया पायरूवेट, ठीक है। C6 इंटर किया था और वो क्या बन गया, पायरूवेट। Wait, I think it is not clear. I'll draw it here only. So this is the cell having cytoplasm and nucleus. Here the mitochondria is present. Okay. Now blood vessel में क्या present है, C6 मतलब ग्लूकोज, और ये हो गया ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये C6 यहाँ जाएगा तो ये टूट के क्या हो जाएगा, C3 मतलब पायरूवेट में चेंज हो जाएगा। और यही C3 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा कर के क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CO2 प्लस ATP प्लस वाटर। यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि पहले हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस करते हैं, और ग्लूकोज तोड़ने के बाद फिर अब क्या होता है, ग्लूकोज टूट के पायरूवेट में चेंज हो गया। तो पायरूवेट की तो ज़रूरत हमें है नहीं, अब पायरूवेट को भी तोड़ना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में ग्लूकोज को तोड़ के पायरूवेट बनाएंगे, दूसरे स्टेप में पायरूवेट को तोड़ करके हम लोग क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। Now each breakdown step is due to a particular enzyme. यहाँ पे बहुत सारे series of enzymes इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो here it is not mentioned. Later on we will discuss about it. Next is the energy liberated in a breakdown of the glucose molecule is not all in form of heat. जो एनर्जी ग्लूकोज टूटती है तो बनती है, वो जरूरी नहीं हर वक्त हीट के ही तौर पे रहे, ठीक है। बट अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ ATP। तो हीट के साथ साथ आपकी बॉडी में क्या बन रहा है, आपकी बॉडी में बन रहा है ATP। ATP मीन्स क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, द नेम इज मेंशन्ड हियर। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कैसा होता है, दिस इज द एडिनोसिन, और इसके साथ 3 फॉस्फेट होता है, 1 2 3, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आ रही है बात समझ में। और जैसे ही ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएंगे ADP, मतलब ये हो गया आपका 1 और 2 फॉस्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ADP, मतलब एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। डाई मतलब 2 ठो, ट्राई मतलब 3। आ रही बात समझ में। सो हियर द केमिकल एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ ATP, द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यही ATP हम लोग बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट प्रोड्यूस ATP। हाउ इट प्रोड्यूस ATP, so the blood comes with the glucose. Here have a look, blood come with the glucose and oxygen. Now glucose and oxygen will break down into pyruvate. Pyruvate move to the mitochondria. Mitochondria make it into a CO2, what ATP and H2O. Okay. सो हियर व्हेन एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ ATP इज़ यूज्ड, अगर हम उस ATP का इस्तेमाल कर लिए तो ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP। अब समझ में आया, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। देख लो, डाई मतलब 2, अब 2 फॉस्फेट बच रहे हैं यहाँ ADP के पास, जबकि हमारे पास बने क्या थे, ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। जैसे इनका एक फॉस्फेट हटता है वैसे इनको एनर्जी लिबरेट होती है। एंड अगेन व्हेन मोर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, द ADP इज रिकन्वर्टेड इनटू ATP एंड सो इट गो ऑन एंड ऑन। अब क्या होगा, ADP वापस से ATP में हो जाएगा, एक और फॉस्फेट जुड़ गया, ये ATP में चेंज हो गए, फिर ज़रूरत पड़ा इनकी फॉस्फेट को तोड़ के वापस इनको ADP में बदल लिया गया, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। नाउ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन यील्ड 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। एक ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, C6H12O6, इसको 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर इसके बाहर में 2 से गुना किया हो तो ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को जब हम कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे, अब ये टूटेगा यहाँ पे पायरूवेट में, पायरूवेट होता है C3, उसके बाद टूटेगा ये CO2 प्लस ATP और प्लस वाटर। तो ये जो ATP है वो टोटल कितना होगा, 38 मॉलिक्यूल ATP होगा। अब देखिए ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन हुआ क्या, जैसे ही ये एनर्जी आती है हीट के फॉर्म में, ये
रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद ये एनर्जी एटीपी, ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, इसे एक फॉस्फेट हटा देंगे, मतलब कि इसको एडीपी में चेंज करेंगे तो एनर्जी यूज़ होगा, हम लोग काम करेंगे। वापस अगर हम, ये एडीपी बन गया, वापस अगर इसमें हम फॉस्फेट ऐड कर दें तो ये एटीपी बन गया, मतलब ये एनर्जी आई, ठीक है। फॉस्फेट था इसमें तो ये हो गया ट्राईफॉस्फेट। जैसे ही इसका हम एक फॉस्फेट तोड़ के हटाएंगे ये बन जाएगा एडीपी। क्यों? क्योंकि ताकि जो एनर्जी मिले उसका हम काम कर पाएँ, तो एटीपी को चेंज कर देंगे एडीपी में और जो एनर्जी मिला वो हम यूज़ कर लिए। लेकिन अब एडीपी को हमको चेंज करना होगा फिर से एटीपी में, तो एक और फॉस्फेट लगा के वापस उसको एटीपी में हम चेंज कर लिए। यहाँ तक बात आ गई समझ में? किसी को कोई दिक्कत? फिर ये देखिए रिप्रेजेंटेशन दिया ही हुआ है, यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे एनर्जी लिबरेट होती है आपके respiration में. Okay, now come to the next page. Here is given about the ATP, the energy currency of the cell. All activity inside the living cell need energy which is available in form of ATP as its immediate source. Hence the chemical compound ATP is described as the energy currency of the cell. इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं. ओके, सो फॉर टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर. लेटर ऑन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. और भी कोई चैप्टर अगर आपको चाहिए कि आपको वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया जाए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा या आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा, तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिएगा. ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन.